Hello engineering aspirants, welcome back to next lectures on workshop technology module. So in this lectures we're going to discuss about some important measuring tools which is used on board ship. What are some important measuring tools? So in this lectures we're going to discuss about some important measuring tools. Clear? Like which tools is used to measure the clearance volume, which tools is used for measure the wear down of bearing, which tools is used to measure the outer diameter of piston rod, and many different tools हम पढ़ने जा रहे हैं. So always remember TME लेवल, GME लेवल, इंट्रांस लेवल पर आपको डीप कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा. They never ask you about measuring procedures and everything. They will just ask you which कंपोनेंट इज मेजर्ड बाय विच टूल. क्लियर? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है. एंड रेयरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो इट्स ओके अगर आप जवाब नहीं भी देते हो तो बहुत बड़ी सिलेक्शन में इंपैक्ट नहीं होगी. क्लियर? चलो, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेजरिंग टूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? चलो, नाउ फर्स्ट थिंग एंड बेसिक्स थिंग्स मैं चाहता हूं कि आप डिस्कशन बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट करो. आई एम रिक्वेस्टिंग टू ईच एंड एवरी GME इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स टू प्लीज टेक पार्ट इन इट. मरीन इंजीनियरिंग GME एस्पायरेंट्स ईच एंड एवरीवन प्लीज टेक पार्ट इन इट्स. नेम इटसेल्फ रूलर एंड स्केल. डेली यूज भी बोल सकते हो. गेटिंग और नॉट? अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये किसके लिए मेजर की जाती है? ये क्या है? टूल्स है. एंड दिस वन इज फंक्शन. प्लीज फिल इन द ब्लैंक. Please fill the blank. Clear? What the function of ruler and scale? Caliper again. Vernier caliper again. ये three things बहुत ही basics है. Each and every GME and marine engineering aspirants को पता होनी चाहिए. चलो next one is micrometer. Now micrometer is a tool which is used to measure large outside diameter and sometimes used to measure the outer diameter of piston rod. How to measure the outer diameter of piston rod? With the help of this micrometer. Clear? Next, filler gauge. Filler gauge is used to measure the clearance and gap width between surface and bearing. It is used to measure the gap width, clearance gap width between surface and bearing. Clear? Now, next thing, telescopic filler gauge. Name itself, telescopic. Used to measure the bearing clearance. Again, it is also used to measure the bearing clearance of the top cell. And ये most of the time वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर फिलर गेज एक्सेस नहीं कर पाएगा. मीन्स टेलीस्कोपिक वो और भी थिन होता है. Always remember. So used where filler gauge access not possible. So sometimes interviewer asks you, suppose filler gauge is not able to measure the right clearance between the clearance or between the with surface gap and mating surfaces. So which tools you will going to prefer next? So always remember telescopic pipe would be your correct option. Clear? So telescopic pipe is the right answer. Now next thing, poker gauge. Again very important tool. Poker gauge, very important measuring tool to measure the propeller stern shaft clearance. There is clearance, no, stern shaft propeller clearance, which is reading indicates the wear down of the stern shaft. तो जो रीडिंग आती है इसकी पोकर गेज की वो आपको बताएगी वियर डाउन ऑफ द स्टर्न शाफ्ट. क्लियर? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, ब्रीज गॉज विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ वियर ऑफ मेन इंजन बियरिंग. मेन इंजन बियरिंग की वियरिंग डाउन की अमाउंट को मेजर कर रही है. लाइनर मेजर टूल, अनदर स्पेशल टूल used to measure the wear down or increase the diameter of the engine liner. Means what? ये एक रोड की तरह होती है. इस रोड के थ्रू आप इंजन डायमीटर, पिस्टन मीन्स विच डायमीटर, लाइनर डायमीटर आप इजीली मेजर कर सकते हो और वियर डाउन भी मेजर कर सकते हो. लाइनर की वियर डाउन रेट होती है ना, उसे आप मेजर कर सकते हो. डेप्थ गॉज, नेम इटसेल्फ डेप्थ. Used to measure the depth of the slot, hole or any other surface of an object. Clear? Angle plate, used to measure the exact right angle of an object
or two objects joined together. Flat plate, to measure the flatness of an object. मुझे चेक करनी ऑब्जेक्ट की फ्लैटनेस, तो कौन सी टूल यूज करूंगा? फ्लैट प्लेट. सी इस तरह क्वेश्चंस काफी टाइम पूछे गए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. सीम्स टू बी इजी बट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. तो प्लीज इंटरव्यू से पहले ये सारे थिंग्स एक बार अगर लुकआउट करके जाओगे तो बेहतर होगा आपके लिए. डायल गोज, टू मेजर द ट्रूनेस ऑफ एन सर्कुलर ऑब्जेक्ट. एंड इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लैट. समटाइम्स इंटरव्यूअर कंफ्यूज्ड यू. फ्लैट प्लेट एंड कंफ्यूज्ड इन बिटवीन फ्लैट प्लेट एंड डायल गेज. तो फ्लैट प्लेट फॉर फ्लैट सरफेस के लिए है एंड डायल गेज टू मेजर द ट्रूनेस ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए. क्लियर? और जंपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट थिंग, लीड वायर यूज टू मेजर द बंपिंग क्लियरेंस ऑफ कंप्रेसर समटाइम्स. ठीक है, इज यूज टू मेजर द वियर डाउन ऑफ क्लियरेंस बिटवीन द मेटिंग सरफेस. क्लियर? नेक्स्ट, साउंडिंग टैप्स. साउंडिंग स्टैप, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ टीएमई. क्लियर? ट्रेनी मरीन इंजीनियर की सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट के 50% साउंडिंग टैप लेके ही घूमोगे. यूज टू लेवल द मेजर ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल एंड मेनी अदर टाइप ऑफ फ्यूल टैंक्स एंड वाटर ऑल्सो. वाटर मीन्स क्लीन ड्रेन टैंक्स होते हैं. क्लियर? क्लीन ड्रेन टैंक क्या होता है शिप पे? प्लीज कमेंट इट बिलो. एनीवन नोज? सी क्लीन ड्रेन टैंक क्या होता है? एयर कूलर होता है. यू नो एयर कूलर. एयर को कूल करते हैं बिफोर सेंडिंग इनटू द मेन इंजन. क्लियर और नोट? बिफोर सेंडिंग टू द मेन इंजन मीन्स योर स्कैवेंजिंग. एयर को कूल की जाती है. एयर कूलिंग क्यों की जाती है? टू इंक्रीज द मास एयर डेंसिटी ऑफ द एयर, टू इंक्रीज इट्स कंबस्टिबिलिटी. और वो कंबसन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एयर की मास एयर डेंसिटी इंक्रीज करते हैं. कूल करोगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मास एयर डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो इस केस में, इस प्रोसेस में एयर की जो मॉइस्चर से कुछ कंडेंस्ड हो जाती है. क्लियर? तो वो जिस टैंक में ड्रेन हो रही है उसे मैं बोलता हूं क्लीन ड्रेन टैंक. क्लीन ड्रेन टैंक ये भी आपको मेजर करनी होती है. एंड शिप पे ऑलवेज रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से साउंडिंग्स लेनी है. ऐसा नहीं कि गए लॉगबुक में जो कल साउंडिंग लिया था वो आप लिख कर आ गए हो. हमेशा याद रखना विकास सर की बात, अगर ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम्स में आओगे, क्योंकि यू डोंट नो कौन सी एरर कब हो जाए, कौन सी डिफरेंट टैंक्स ओवरफ्लो हो जाए. सो रेगुलर बेसिस पे आपको टैंक साउंडिंग लेना है. टेक इट सीरियसली. क्लियर? चलो, साउंडिंग टेप्स यूज टू लेवल द मेजर ऑफ HFO, DO, LO, फ्यूल ऑयल एंड वाटर. अगेन वाटर में क्लीन ड्रेन टैंक हो गई, बालास्ट वाटर हो गया. क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम डेक कैडेट बालास्ट वाटर की साउंडिंग लेते हैं. नाउ क्रैंकशाफ्ट डिफ्लेक्शन, नेम इटसेल्फ. क्रैंकशाफ्ट में जो डिफ्लेक्शन उसको मेजर कर रही है. यूज टू मेजर द क्रैंकशाफ्ट डिफ्लेक्शंस ऑफ मरीन इंजन लाइक योर ऑक्सिलरी इंजन्स. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट मेजरिंग टूल्स. क्लियर? सो होप सो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी. सीम्स टू बी इजी बट बिलीव मी काफी ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूछूंगा. तो प्लीज मेक योर ऑन नोट्स. अपनी नोट्स बनाओ, ईच एंड एवरीथिंग आप राइट डाउन करो, ताकि इंटरव्यू से पहले ये लंबी लंबी वीडियो ना देखना पड़े. इंटरव्यू से पहले अपनी शॉर्ट पॉकेट नोट बनाओगे तो वो काफी काम आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स. थैंक यू.